Hello, friends. I welcome you all on this platform. As we promised, I'm with my new video here, right? So let me introduce myself. My name is Ajay Guntal, and I have worked as research associate at R&D department IOCL. I have also worked as project engineer in Commonwealth Games Place, and I've been teaching for competitive exams like GATE Engineering Services since 2012. I've done my masters, you can see, from IIT Delhi, right? So if you're looking for a reason why you should prepare for GATE, then this video will surely help you, right? This video will surely help you. So first, start with the question, what is GATE? General introduction, as you can see, it is Graduate Aptitude Test in Engineering and it is conducted by 7 IITs and ISC Bangalore. There is a cycle, you can see. 2008, it was conducted by ISC Bangalore. Then after 8 years, 2016, right? Same way, IIT Roorkee, IIT Guwahati, IIT Madras, every 8 years. अभी रिसेंटली देखें IIT खड़गपुर 2022 मतलब 2022 ये अभी होने वाला है. इससे पहले आप 8 ईयर पहले जाके देखिए IIT खड़गपुर ने आपको कब करवाया था 2014, राइट? एवरी 8 ईयर it repeats, and this exam conducted under MHRD. This is general introduction. Now who can appear? कौन इस एग्जाम में जा सकते हैं? तो there are many criteria, but for you people who are from engineering background, criteria is B BTech or B Architect. If you are in final year or pre-final year, you can apply for this. अब देखते हैं कहां पर. This is the criteria, general criteria. Now why GATE? कहां पर और क्यों मुझे करना है, right? This is the biggest question for you if you want to prepare. Why GATE? As we can see here, there are number of opportunities after GATE. There are number of opportunities. Start from the top, MTech. I'll talk about each and everyone. So from first MTech, PSUs, then second PSUs, public sector undertaking, PhD programs, FPM, fellowship program in management, MS, Master of Science, teaching, research, state industries. So you can see there are number of opportunities. अब हमें देखना है हमें कहां पर जाना है, राइट? अब वहां से जाने वाले हैं. I can give you a small idea about where you can apply. If you have, this exam is about 100 marks, right? If you are getting 70 plus marks, then you are eligible for most of the things. MS, PSUs, IIT, ISC, IIMs, FPM, NIT, private colleges. But if you are getting less mark, 40 marks, 45 marks, then your scope is less. You can see it is general. आपको और अपडेट चाहिए तो we can see year wise जो भी colleges हैं वहाँ पर आप लगा कर देख सकते हैं. उनके जो recent में admission हुए हैं वो last cut off क्या गया था. You can check this also. So first we'll talk about MTech. जैसा मैंने आपको पहले बताया था previous slide के अंदर, MTech क्या है, इसके benefits क्या है. तो first of all हम अगर start करें, सबसे टॉप से स्टार्ट करें तो देन यू कैन सी बेटर जॉब प्रोफाइल्स, हाई पैकेजेस, बेटर फर्म्स. मोस्टली द कंपनी विच इज IITs और NITs, दे टेक पीपल फॉर R&D डिपार्टमेंट. तो इसमें जो फायदा सबसे बड़ा यही होने वाला है कि आप R&D डिपार्टमेंट में अप्रोच कर सकते हो. वहां आपको जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा है. 99% जो मैं देखता हूँ IITs के अंदर मोस्टली विजिटिंग कंपनीज फॉर लुकिंग पीपल फॉर R&D डिपार्टमेंट. जैसे होंडा थी, हीरो थी और कई ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, टाटा, ये मैकेनिकल में आपको मैं बताऊंगा. तो ये सारी कोर कंपनियां हैं. जैसे सिविल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर, तो CS में तो बहुत अच्छे पैकेज में वहां पर MTech करने के बाद में. दूसरा मैं आपको बताऊं, वर्क, चेंज टू वर्क इन रिसर्च पोजिशन लाइक GRF इन ISRO, DRDO, BARC. तो ये एक ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर, राइट? यू कैन गो इन डिफरेंट फील्ड, ISRO, DRDO, BRC के अंदर मैं आपको बात करूंगा. आप जैसे ही गेट एग्जाम लिखते हैं यू विल गेट अ स्कोर, देन BRC विल फ्लोट अ जॉब. वो कौन सा होगा? देयर 2 एंट्री स्कीम, OCAS एंड DGFS. OCAS में क्या होगा? दे विल सेट सम गेट कट ऑफ क्राइटेरिया, कुछ मिनिमम अपना गेट कट ऑफ रखेंगे स्कोर का. दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू. अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट पे लगा देते हैं वहाँ पे. If you want to
डू योर एमटेक, तो देर इज़ वन स्कीम DGFS, तो वहाँ से आप एमटेक कीजिए। दे विल सजेस्ट टू द IITs कि कहाँ से, और जो स्ट्रीम है थर्मल है या किसी स्ट्रीम से आपको करना है, ठीक है। मीनवाइल यू विल गेट योर स्टाइपेंड फ्रॉम बार्क, तो दे विल टेक केयर ऑफ दिस। आपको एक तरह से स्टाइपेंड मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, एंड आफ्टर योर एमटेक दे विल एब्जॉर्ब यू। दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, पीपल हु आर लुकिंग फॉर BRC, आपका एमटेक भी साथ में हो जा रहा है। अनदर थिंग इज ब्रांड नेम। ऑब्वियसली अगर आप एमटेक करके किसी IIT NIT से आप कर रहे हैं तो ब्रांड नेम आपके साथ जरूर आएगा, राइट। IIT NIT को भी आपके नाम के पीछे लगता है, तो इट विल श्योरली हेल्प यू। लास्ट नीचे की तरफ देखें आप, स्टाइपेंड, यू विल गेट 12,400 रुपीज फॉर योर एमटेक। जब आप कर रहे हो तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इसमें अभी कुछ चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, वो हम और देखेंगे क्या है, उसके बारे में वीडियोस हम आपको बताएंगे जो आते रहेंगे। पर आप इसके लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप करते हो, टीचर के कुछ असाइनमेंट होते हैं वो आपको करने होते हैं, फॉर दैट यू विल गेट 12,400 रुपीज। तो आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो वहाँ से वो हेल्प आपको सपोर्ट हो जाती है, तो आप यू कैन स्टडी और साथ में आपको ये पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका जो कॉलेज की फीस वगैरह काफ़ी हेल्प हो जाती है, सपोर्ट हो जाता है आपको। मैं कहूँगा मोर करियर अपॉर्चुनिटीज लाइक टीचिंग, रिसर्च, कोर सेक्टर, यू कैन गो इन कोर सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया R&D डिपार्टमेंट है, या कोर कंपनीज यूजली विजिट दी IITs और NITs, ठीक है। उसके अलावा आपको टीचिंग में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। यू विल गेट दैट एनवायरमेंट, जैसे आप इन कॉलेज के अंदर जाते हैं तो यू विल गेट दैट एनवायरमेंट, वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, तो वो मिलना वो सब वहाँ पर पॉसिबल है। जैसे डार्ट की स्कीम होती है, उसके थ्रू आप जर्मनी से प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो आपका एमटेक का होता है, तो स्कॉलरशिप यू विल गेट फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो आपको वहाँ से स्टाइपेंड मिलता है, अच्छा स्टाइपेंड होता है वो। और लास्ट में मैं बताया जैसे आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, नॉलेज एंड स्किल बिल्डिंग तो है ही, अगर आप इतने अच्छे कॉलेज में एक्सेस करोगे लेबोरेटरीज को, तो श्योरली इट विल हेल्प यू। सो गेट इज द क्राइटेरिया, मतलब एमटेक इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। गेट स्कोर की अगर वेटेज की बात कर रहे हैं 70% दे कंसीडर। उसके अलावा कई IITs का अलग है, जैसे IIT रुड़की के अंदर पहले होता था डायरेक्टली काउंसलिंग करते थे, इन IIT दिल्ली दे टेक डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट है, आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, वो भी हम बनाते रहेंगे बाद में वीडियोस। IIT दिल्ली के अंदर दे टेक रिटन एग्जाम, ठीक है। इन सम ब्रांचेस दे टेक इंटरव्यू ऑल्सो। इन IIT बॉम्बे मोस्टली दे टेक इंटरव्यूज एज वेल एज द रिटन एग्जाम देन इंटरव्यू एंड दे कंसीडर गेट स्कोर। तो ये तीन चीजें होती हैं, तो क्राइटेरिया इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। क्वालिटी आपको और फिल्टर होते चले जाओगे आप IITs में आने के लिए। एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था PSU का, उसी में जो मैंने गेट से कहा था। सो PSU क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वेयर 51% और मोर कंपनीज इक्विटी, है ना, इट इज ओन बाय द गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। सबसे बड़ा फायदा PSU का क्या है, जॉब सिक्योरिटी में कहूँगा, राइट, क्योंकि खुद गवर्नमेंट का उसमें स्टेक है। पब्लिक रिस्पेक्ट, कोर सेक्टर, वर्क लाइफ बैलेंस, हाई पैकेज, पर्क अलाउंसेस, ये सब उसमें ज़्यादा रहेगा। आप मतलब वो लोग इस तरह से डेवलप करते हैं अपने सिस्टम को कि आपका जो वर्क लाइफ का बैलेंस बहुत अच्छा बनाएगा। टाउनशिप होंगी, आपको स्कोप रहेगा, आप गेम्स में जाना चाहते हो तो वो ऑफर आप, वो जगह आपको मिलती है, वो चांसेस आपको मिलते हैं। उनके काफ़ी मतलब ऐसे सोशल सेंटर रहते हैं जहाँ पर आप लोग अपने स्किल पे भी काम कर सकते हो। सैलरी पैकेज तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होते हैं, कोर सेक्टर आपको मिल ही जाता है। जॉब सिक्योरिटी, पर्क्स, अलाउंसेस, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, इतना प्राइवेट सेक्टर में हर जगह नहीं मिल पाता। जैसे मेडिकल की हम बात करें, मेडिकल फैसिलिटी और जो मेडिकल कवर मिलता है वो PSUs वगैरह में काफ़ी अच्छा होता है, मतलब 25 लाख 20 लाख किसी के अंदर होता है। ONGC की हम बात करें, नाउ यू कैन सी द पैकेजेस। सो दे आर सम ऑफ द PSUs लाइक ONGC, BPCL, BHEL, HPCL, Power Grid, NTPC, DDA, BEL, GAIL, MECL, IOCL, HECL, they are some of the PSUs। अगर मैं पैकेज की बात करूँ 12 लाख पर ईयर, मैं थोड़ा पुराना बता रहा हूँ, तो 1 लाख पर मंथ हो गया लगभग, ठीक है। उसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ONGC की हम बात कर रहे हैं, यू विल गेट 1,10,000 रुपीज फॉर बाइंग अ लैपटॉप इन एवरी 3 years। जैसे 3 साल होते हैं आपको 1,10,000 रुपये मिलते हैं। यू विल गेट 5,000 फॉर सूट केस एवरी 2 year। यू विल गेट 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये मिलेंगे आपको फॉर बाइंग अ न्यू सनग्लास, 20,000 रुपये का हर 2 साल के अंदर मिलेगा। तो ये देखिए साथ में पर्क्स कितने मिलते हैं आपको। अलाउंसेस मिलेंगे, अगर आपकी जो यूनिफॉर्म होती है उसको वॉश करने के अलाउंसेस मिलेंगे आपको। मेडिकल कवरेज जो ONGC में है इट इज़ अनलिमिटेड। तो फॉर योर डिपेंडेंट ऑल्सो, जो आपके डिपेंडेंट हैं, आप जाएं अच्छी किसी भी हॉस्पिटल में जो उनका टाइप होता है वहाँ आप जाएंगे तो वो सारा का सारा जो आपका एक्सपेंसेस है वो ONGC बेयर करता है। ऐसे BPCL इनमें भी 20-25 लाख होता है, बहुत अच्छा खासा होता है।
ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप करंट सिचुएशन देख रहे हो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको मेडिकल कवरेज मिलता है, आपको मोबाइल फ़ोन के लिए भी पैसे मिलते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए भी इसमें मिलते हैं पैसे। पेट्रोल डीजल आपकी गाड़ी में डलाते हो, उसका भी कुछ 9,000 अप्रॉक्स कुछ पैसा मिलता है आपको मंथली। सो दीज आर दी पर्क्स। सैलरी है इतना हाई। मैंने एक बात करी थी फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, FPM, यू कैन गूगल इट ऑल्सो। सो इट इज डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, PhD इन मैनेजमेंट। आपको IIMS में पढ़ना है, IIMS में पढ़ना इज योर टीम, तो आप वहां भी जा सकते हो। देखो मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो। सो ड्यूरेशन 4 to 5 years का होता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फ्री। यू विल गेट 30,000 एज योर स्टाइपेंड फॉर 2 years, देन 35,000 यू आर गेटिंग अ सैलरी। तो 30,000 बहुत अच्छा नंबर है, एंड आफ्टर 2 years यू विल गेट 35,000 पर मंथ। Obviously, placement in leading companies and banks, contingency allowances like will get 1 lakh rupees. जैसे आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, you will get 1 lakh rupees as a contingency allowance. Apart from that, you will get 50,000 for laptop. Areas where you can do the PhD in management, economics, finance, HRM, information system, marketing, production, organization, management, strategic management. कितने सारे एरियाज हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे आप अपना PhD कर सकते हो। आप टीचिंग में तो आ ही सकते हो, ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग PhD तो आप टीचिंग में तो आ ही सकते हो। इसके अलावा भी जैसे आप लोग बाहर जैसे आपके कई सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो आप बाहरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आते हो तो उसका भी कुछ स्टाइपेंड होता है। आप इंडिया के अंदर करते हो, उसका भी कुछ पैसा आपको मिलता है। तो आपको काफ़ी फैसिलिटी है ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। और वैसे भी IIMS में पढ़ना इज ए ड्रीम। अदर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम गेट लाइक MS अगर आपको करना है, सो फॉरेन यूनिवर्सिटी यू कैन सर्च National University of Singapore, National Technical University, you can do MS from there. ये आप बहुत अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखिएगा, और गेट के थ्रू एंट्री है। इसके अलावा मैंने आपको BRC के बारे में बता दिया कि BRC में भी एंट्री होती है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि ओपेगन है, PSPCL है, ये भी गेट स्कोर कंसिडर करते हैं, और अब प्राइवेट सेक्टर भी कुछ गेट स्कोर कंसिडर करने लगे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, एक निटी मुंबई कॉलेज है, ठीक है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कॉलेज है, और जो एवरेज स्टाइपेंड सैलरी जो जाती है वहाँ पे 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, इतने पैकेजेस वहाँ पे जाते हैं। दे आर 2 एंट्रीज, PGDIM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, PGDIE, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। PGDIE की जो एंट्री है वो गेट से है, एंड यू विल गेट 12,400 एज स्टाइपेंड। जब प्लेसमेंट होगा दोनों को लगभग साथ में बैठाते हैं, कंपनी साथ में विजिट करती हैं। PGDIM में जो लोग आते हैं दे आर फ्रॉम कैट की एंट्री से आते हैं, तो पैकेज अच्छे आते हैं। आपको वही मैनेजमेंट की पोस्ट मिल गई। अगर आपको MBA करने का मन था, वो भी काम आपका हो गया, एंड दिस PGDIE इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर MTech। तो आप टीचिंग में भी आ सकते हो। मेरी अभी अपनी एक फ्रेंड से बात हुई थी, उसने अपना इंडस्ट्री के अंदर MTech किया था और फिर PhD की थी। अभी मेरी उससे बात हुई तो वो नाउ ही इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIM, ठीक है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास यहाँ पर हैं इसके साथ में। अब आपको आई थिंक पूरा जो सॉलिड डिसीजन मिल गया होगा कि आपको गेट का प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए। यू कैन गो इन PSUs, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, टीचिंग, रिसर्च, मैनेजमेंट, कितने सारे एरिया हमने टच कर लिए। तो ये सब हम लोग जनरली सर्च करते हैं कि आप कैट करोगे या कुछ करोगे, तो वो सब आपको यहाँ से मिल जा रहा है। आपका मन है MS करने का बाहर से, वो भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिल गई। मेरे ख्याल में गेट में वो सब कुछ है जो भी हम लोग इंजीनियर जितने ड्रीम करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ और करना है तो मैं आपको फोर्स नहीं करता, पर मुझे लगता है यहाँ पर हमारे एक इंजीनियर के लिए काफ़ी स्कोप हमें है इस पेपर देने के बाद। नाउ गेट पैटर्न्स के बारे में तो ज़रूरी है बात करना। सो इट इज़ ऑनलाइन एग्जाम, इट इज़ कंडक्टेड इन 21 स्ट्रीम्स। अभी चेंज हो गया होगा ये। तो जो कोर ब्रांचेस की बात करूँ, 5 स्ट्रीम हमारे कवर होते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, CS। एंड दिस एग्जाम कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन, क्योंकि अब ऑनलाइन होता है तो सिस्टम्स मिलते हैं, अलॉट होते हैं, तो स्लॉट में होता है। 100 मार्क्स के आपके 65 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी होंगे। 50 मार्क्स विद 10 क्वेश्चन फॉर एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन हो गए एप्टीट्यूड के। 85 मार्क्स विद 55 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड कोर सब्जेक्ट। जो बचे हुए 85 मार्क्स हैं वो कहाँ से आएंगे? मैथ्स से और कोर सब्जेक्ट से। 55 क्वेश्चन होंगे। इसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। टोटल जैसे आपको बता दिया 65 क्वेश्चन होने हैं। 30 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के हैं, 35 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। टोटल 3 आवर्स का पेपर होगा आपका। इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, मल्टी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एंड और वाले, ठीक है। ये इतना भी नहीं मिलता, फिर भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप
ये आपके हैं। इसमें क्या होगा, आपको जो डेटा एंट्री है, जो आपको आंसर टाइप करना है, वो आपको वर्चुअल कीबोर्ड से करना होगा। हम आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना भी बताएंगे, इसके भी वीडियोस हम आपको देंगे, ठीक है। वैसे आप डेमो देखेंगे तो डेमो स्टेशन आपको मिल जाएंगे उसके बहुत सारे। फॉर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आंसर नीड टू बी एंटर्ड यूजिंग वर्चुअल कीबोर्ड। इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं वो, क्योंकि देयर इज अ रेंज, लाइक योर आंसर इज 13.54 एंड यू आर गेटिंग 13.51, आपने वो डाल दिया तो ऐसा तो गलत नहीं होगा। सो दे गिव अ पर्टिकुलर रेंज लाइक 30.50 टू 30.57, वो इतना कंसिडर करते हैं। अगर आप कर दोगे तो आपको बस टाइप करना, उसमें आ जाएगा। अगर उससे बाहर चला गया यू विल गेट 0, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जैसे हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया तो 0.67 लूज करोगे आप, 0.67, और 1 मार्क आया तो 0.33 मार्क्स आप लूज करने वाले हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में। एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, 5 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, 50 मार्क्स कवर हो गए। टेक्निकल में 25 क्वेश्चन 1 मार्क के एंड 30 क्वेश्चन 2 मार्क, तो यहाँ से आपके 85 मार्क्स कवर हो गए। हम अगर एग्जाम डेट की बात करें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे लिए, तो अभी आई एम टारगेटिंग 22 जो भी है गेट आने वाला है नेक्स्ट। इसके अलावा कभी भी आप देखोगे ये डेट्स लगभग वही होती हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबिलिटी है, इट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ये मैं फिर भी आपको टेंटेटिव दे रहा हूँ, अभी पैंडेमिक है तो हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, ये जनरल दे रहा हूँ। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ये कब होगा, सेकंड वीक अक्टूबर में होता है। लास्ट डेट फॉर चेंज इन एग्जाम सिटी, ये ऑप्शन आता है अगर आपने एग्जाम सिटी गलत भर दिया तो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में टेंटेटिव आ जाता है। अब जैसे गेट जो भी नेक्स्ट आने वाला है, इसका कब तक हम कहें गेट एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में या फिर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाता है, ये आ जाएगा, मतलब ऐसा हमारा आइडिया है। और गेट 2020 की एग्जाम डेट की हम बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये सैटरडे एंड संडे, ये आपके होंगे फरवरी के, ठीक है। अभी ये पैंडेमिक की सिचुएशन को मैं फिर वापस बोल रहा हूँ कि ये अगर आती है तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ये जनरल है जो अब तक होता है। आप किसी भी ईयर में होंगे, आगे वाले ईयर्स जो आएंगे तो वीक्स और जो मैं आपकी मंथ की बात कर रहा हूँ ये टेंटेटिवली यही रहेंगे। आंसर की आएगी इसके बाद 1 महीने में, और फिर उसी के 1 हफ्ते में यू विल गेट दी फाइनल रिजल्ट। वहां तक एग्जाम क्यों देना है और कब देना है और एग्जाम है क्या, वी टॉक्ड अबाउट 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थिंग्स टुडे, राइट। हमने इस बारे में बात करी है। एग्जाम फीस की बात करें हम, कितनी फी है इसकी। सो फॉर फीमेल कैंडिडेट इट इज 750 रुपीज ओनली। अगर आपका डेट निकल जाता है 500 दिस इज पेनल्टी, 1250 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे। फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स 750 एंड 1250 आफ्टर डेट अगर निकल जाती है। फॉर अदर अनरिजर्व कैटेगरीज 1500 जो बॉयज हैं और 2000 पेनल्टी आपका के साथ लेट करते हैं। और भी कंट्रीज के लोग उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, दुबई वगैरह, सिंगापुर, वहाँ भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। नाउ वी आर रेडी टू डिलीवर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, आर यू। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करने वाले हैं। हम अपनी पूरी तैयारी कर रख के साथ बैठे हैं और सब कुछ करने वाले हैं, तो आप देखिएगा हम कैसे करेंगे। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप चैनल पर इस वीडियो पर कमेंट भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको चैनल के लिंक मिल जाएंगे, हम जो टेलीग्राम चैनल हमारे साथ में है वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने अपना फेसबुक पेज भी बता दिया है, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।